Bismillahirrahmanirrahim. I'm going to start my presentation with a verse from the Holy Quran that says, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُم يَرْشُدُونَ। और जब मेरे बंदे मुझसे ए नबी मेरे बंदे जब तुमसे सवाल करें कि मैं किधर हूँ तो कहो कि मैं बहुत करीब हूँ, पुकारने वाले की पुकार को सुनता हूँ जब वो मुझे पुकारता है, तो उनको चाहिए कि मुझ पर ईमान लाएं ताकि वो हिदायत पाएं। Assalamu alaikum. My name is Dr. Nurul and I am a postgraduate resident at Mughal Eye Hospital, and today the topic of presentation is primary open angle glaucoma. As it is a very diverse topic and it comes in your short case and long case, so we have divided into two halves. In the first half, we will be discussing about the basics of it, the epidemiology, the risk factors, and how a patient presents to you in an OPD. And in the next half, which will be in the next lecture or next Wednesday, we will be discussing about the investigations and the treatment of it. So the specific learning outcomes, by the end of this presentation, the audience will be able to define primary open angle glaucoma, tell the characteristics of it, enumerate the risk factors for primary open angle glaucoma, identify the screening subjects of primary open angle glaucoma, and describe how a patient of primary open angle glaucoma comes to you in an outpatient department, and ultimately do a detailed history clinical examination of a patient with primary open angle glaucoma. So, by definition, primary open angle glaucoma is a chronic progressive optic neuropathy of adult onset that is being characterized by raised intraocular pressure, open angle, absence of any secondary cause of glaucoma like neovascularization or any pseudoexfoliation, नो नॉन ग्लूकोमेटस कॉज ऑफ ऑप्टिक न्यूरोपैथी, कोई ट्रॉमेटिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी की कोई हिस्ट्री पेशेंट ने नहीं दी, इस तरह की कोई चीज नहीं है। ग्लूकोमेटस ऑप्टिक नर्व डैमेज है, टिपिकल ग्लूकोमा की ऑप्टिक डिस्क है और ऑप्टिक फंडस के ऊपर फाइंडिंग्स है ग्लूकोमा की, जो कि लेटर ऑन हम डिस्कस करेंगे कि क्या फाइंडिंग्स होती हैं। रेटिनल नर्व फाइबर लेयर की थिनिंग हो रही है और कैरेक्टरिस्टिक विजुअल फील्ड डिफेक्ट हो रहे हैं, ग्लूकोमा के टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक विजुअल फील्ड डिफेक्ट हो रहे हैं। Epidemiology. Considering the epidemiology, primary open angle glaucoma is considered to be more prevalent in Europeans and Africans as compared to Asians. मेल एंड फीमेल प्रीडोमिनेंस इक्वल होती है, कोई प्रीडिस्पोजिशन नहीं है मेल और फीमेल में। अबव 70 years of age, prevalence of primary open angle glaucoma is considered to be 6% in white population, 16% in black population and only 3% in Asian population. So typically जो patient होगा old age का patient होगा और African और ethnicity से belong करता होगा। Risk factors for it, IOP high है, कोई मुझे बता सकता है IOP की कट ऑफ वैल्यू क्या होती है हमारे adults के अंदर? 21 से एलिवेटेड है या फिर दोनों आइज के दरमियान में 4 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी से ज्यादा की एसिमेट्री है। एज ओल्ड एज है, रिस्क फैक्टर में ब्लैक ग्रेटर देन व्हाइट, ऑल्सो एट एन अर्लियर, क्योंकि जो ब्लैक्स में डेवलप होता है अर्लियर ऑनसेट में भी डेवलप हो सकता है और इट इज ऑल्सो डिफिकल्ट टू कंट्रोल। पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री है, अगर आपके सिबलिंग्स में से किसी को प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा है, सो द रिस्क ऑफ प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा डेवलपिंग इन यू इज 4 times मोर, एंड अगर आपको प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा है तो ट्वाइस इंक्रीज रिस्क हो जाएगा इन द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा इन योर ऑफस्प्रिंग्स। डायबिटीज की एसोसिएशन है, क्यों एसोसिएशन है? क्योंकि डायबिटीज एक वास्कुलर पैथोलॉजी और वास्कुलर पैथोलॉजीज के साथ लेटर जब पैथोजेनेसिस हम डिस्कस करेंगे ग्लूकोमा का, तो देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से डायबिटीज की एसोसिएशन चल रही है प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा के साथ। मायोपिया के अंदर मोस्ट कॉमनली प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा डेवलप होता है और हाइपरमेट्रोपिया में कौन सा एंगल क्लोजर ग्लूकोमा डेवलप होता है। एंटी वेजफ स्टडीज कहती हैं कि अगर एक पेशेंट को सब्सिक्वेंट 6 और मोर इंट्राविट्रल इंजेक्शंस लगे एंटीवेजेफ के और उसमें भी स्पेसिफिकली बेवासीजुमैब के इंजेक्शन ज्यादा लेंगे इन कंपैरिजन टू रेनिविजुमैब, तो रिस्क ऑफ आईओपी एलिवेशन ज्यादा हो जाता है और अल्टीमेटली सब्सिक्वेंटली डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा के रिस्क इंक्रीज हो जाता है। लेटर ऑन अगर हम देखें कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो है वो सर ये एग्जैक्ट वैल्यूज तो नहीं पता, लेकिन स्टडीज में मैंने ओके सर ताकि कंपैरिजन ठीक है, ओके सर। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की एसोसिएशन होती है क्योंकि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो पेशेंट्स लेती होती हैं उनमें थ्रोम्बोएम्बोलिटिक कंडीशंस का रिस्क इंक्रीज होता है और अल्टीमेटली इस्केमिक डैमेज की वजह से प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा का रिस्क इंक्रीज होएगा। वास्कुलर डिजीज है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, कार्डियोवास्कुलर एब्नॉर्मलिटी है, कोई वेजोस्पास्टिक कंडीशन है लाइक माइग्रेन और रेनॉल्ड्स फिनोमेना, वो भी एसोसिएटेड इंक्रीज रिस्क डेवलप करती हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा। पुअर ऑक्यूलर परफ्यूजन इज आल्सो बीन एसोसिएटेड
with it. ये सारे risk factors क्यों important हैं? इसलिए important है because when a patient comes to you with a primary open angle glaucoma that you are suspecting, तो आपने ये सारे risk factors को rule out करना है जब उससे questioning करनी है. वो later on आपको बताती हूँ कि हिस्ट्री में क्या-क्या सवाल पूछने हैं आपने. Translaminar pressure gradient, it is basically the difference in the level of IOP and orbital CSF pressure, and it also increases the risk for the development of प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा. क्योंकि क्या होता है कि डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई होता है लेमिना क्रेब्रोजा के ऊपर. अब लेमिना क्रेब्रोजा बेसिकली क्या होता है? इट इज अ सीव लाइक स्ट्रक्चर जिसमें से जो गैंग्लियॉन्स नर्व फाइबर्स जो है वो बेसिकली पास हो रहे हैं. जब उनके ऊपर डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई होगा तो उन नर्व फाइबर्स की डैमेज हो सकती है जिसकी वजह से प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा का रिस्क इंक्रीज हो सकता है. ऑप्टिक डिस्क लार्ज है. लार्ज ऑप्टिक डिस्क इज बीइंग एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा एंड ऑक्यूलर परफ्यूजन प्रेशर, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द आर्टेरियल प्रेशर एंड द आईओपी. अगर ज्यादा डिफरेंस होगा तो ऑक्यूलर परफ्यूजन प्रेशर डिक्रीज होगा और अल्टीमेटली जो है वो इस्कीमिया की वजह से ही प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा का रिस्क इंक्रीज हो जाएगा. जेनेटिक्स पे जाएं तो दो तरह की जीन्स आर बीइंग कंसिडर्ड, MYOC जीन एंड OPTN जीन. MYOC जीन इज बीइंग कंसिडर्ड टू बी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ प्रोटीन कॉल्ड मायोसिलिन प्रोटीन. और मायोसिलिन जो प्रोटीन है दैट इज द प्रोटीन प्रेजेंट विद इन द ट्रेबेकुलर मेशबग. जब इस जीन के अंदर म्यूटेशन होगी तो अल्टीमेटली मायोसिन प्रोटीन जो है वो ऑल्टर्ड होगा, जो ट्रेबेकुलर मेशबग के अंदर ऑल्टर्ड होगा. एंगल तो आपका ओपन है बट क्या हो रहा है? एंगल तो आपका ओपन है बट अल्टीमेटली एक्वस प्रोडक्शन भी हो रही है बट वो ड्रेनेज प्रॉपर नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से जो है वो आईओपी रेज होगा और अल्टीमेटली सारी चेंजेस डेवलप होना शुरू हो जाएंगी. उसके बाद अगर हम देखें ओपीटीएन जीन, दैट इज आल्सो दैट जीन दैट एनकोड्स फॉर ऑप्टिन यूरिन, दैट इज आल्सो एसोसिएटेड विद इंक्रीज रिस्क फॉर प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा. देखा गया है कि अगर एक पेशेंट आपके पास प्रेजेंट करता है विद प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा व्हिच इज लेस देन 35 years of age, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट प्रॉबेबली उसके अंदर म्यूटेशन हुई है, क्योंकि म्यूटेशन जो होती हैं वो अर्ली ऑनसेट की प्रेजेंटेशन के साथ आती हैं. देन अगर आपकी जनरेशन और फर्स्ट 2 जनरेशन के अंदर आपके जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स हैं उनमें 3 से ज्यादा फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स को प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा है तो वो इंक्रीज रिस्क हो जाएगा. देन यू बिकम अ सब्जेक्ट फॉर स्क्रीनिंग. पैथोजेनेसिस में हो क्या रहा है? बेसिकली रेटिनल गैंग्लियन सेल्स की डेथ हो रही है और इट इज अ प्रोग्राम सेल डेथ, दैट इज अपोप्टोसिस हो रहा है, नेक्रोसिस नहीं हो रहा. अपोप्टोसिस क्यों हो रहा है? क्योंकि उसको 2 बेसिक रीजंस की वजह से मैकेनिकल स्ट्रेस जनरेट होता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जनरेट होता है और उस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में वो एक अपोप्टोटिक कंडीशन में चला जाता है. हो क्या रहा है? एक डायरेक्ट मैकेनिकल डैमेज है to the retinal nerve fibers at the optic nerve head perhaps as they pass through the lamina cribrosa. मैंने आपको बताया retinal nerve fiber जब बेसिकली पास करते हैं अल्टीमेटली lamina cribrosa में से पास करें, आईओपी रेज हो रहा है, आईओपी के रेज होने की वजह से डायरेक्ट प्रेशर जनरेट हो रहा है एट द पॉइंट वेयर द retinal nerve fibers are exiting the eye एट द पॉइंट ऑफ लेमिना क्रिब्रोजा. तो उस पॉइंट के ऊपर डायरेक्ट मैकेनिकल प्रेशर जनरेट हो रहा है उसकी वजह से. और दूसरा रीजन ये है कि इस्कीमिक डैमेज जनरेट हो रहा है पॉसिबली ड्यू टू द कंप्रेशन ऑफ ब्लड वेसल्स सप्लाइंग द ऑप्टिक नर्व हेड. दिस मे रिलेट टू द ऑक्यूलर परफ्यूजन प्रेशर एज अ पॉसिबल रिस्क फैक्टर्स फॉर ग्लूकोमा. इसीलिए क्योंकि ये वैस्कुलर कंडीशन है, इसकी जो रेटिनल नर्व फाइबर लेयर को सप्लाई करने वाली ब्लड वेसल्स है उनका भी जो उनको उसके अंदर इस्कीमिया डेवलप हो रहा है एज अ रिजल्ट ऑफ मैकेनिकल प्रेशर एंड इस्कीमिया. बोथ ऑफ दीज कंडीशंस आर जनरेटिंग एन ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस टू द रेटिनल नर्व फाइबर्स और वो फिर एक प्रोग्राम्ड सेल डेथ के अंदर चले जाती हैं. अल्टीमेटली ये एक पिक्चर है दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे रेटिनल नर्व फाइबर लेयर्स हैं और अल्टीमेटली इफ यू सी कि यहाँ पे आईओपी रेज होता है. जब आईओपी रेज हो रहा है तो ये रेटिनल नर्व फाइबर लेयर्स को डैमेज हो रहा है आईओपी के रेज होने की वजह से और उसके बाद फिर एज अ रिजल्ट ऑफ दैट मेटाबॉलिक स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, लोकल इस्कीमिया जनरेट हो रहा है और एपोप्टोटिक रेटिनल गैंग्लियन सेल्स की डेथ हो रही है. Both mechanisms might lead to a reduction in exoplasmic flow. जो गैंग्लियंस हैं उनके अराउंड जो रेटिनल गैंग्लियन सेल्स हैं उसके अराउंड एक्सॉन्स हैं जो कि उसको सप्लाई कर रहे हैं न्यूट्रिएंट्स. एक्सॉन की एक्सोप्लाज्मिक फ्लो की वजह से न्यूट्रिएंट सप्लाई हो रहा है. अब जब न्यूट्रिएंट सप्लाई नहीं हो पा रहा, मेटाबॉलिक वेस्ट रिमूव नहीं हो पा रही, डिप्राइविंग ऑफ न्यूरोनल ग्रोथ फैक्टर्स, ऑक्सीडेटिव इंजरी हो रही है और एक इनिशिएट हो रहा है इम्यून मीडिएटेड डैमेज. स्क्रीनिंग सब्जेक्ट्स कौन से हैं? ऑल दोस पेशेंट्स हु आर ओल्ड, who are above 40 years of age with a positive family history of primary open angle glaucoma and all those patients who are most commonly of African origin. तो उसमें स्क्रीनिंग में हमने मेजरली क्या करना होता है? हमने रेगुलर बेसिस के ऊपर टोनोमेट्री करनी होती है ताकि आईओपी के लेवल्स हम मेंटेन कर सकें और अगर हमें लगे कि आईओपी के लेवल्स एलिवेटेड हैं तो फिर हम उसको लेटर ऑन जो है वो हम उसकी डिटेल्ड एग्जामिनेशन करेंगे जिसमें हम ऑफ्थल्मोस्कोपी भी करेंगे, उसकी डिस्क को भी देखेंगे कि डिस्क के अंदर ग्लूकोमेटस चेंजेस हैं या नहीं है और उसके बाद अगर हमें वो भी लगती हैं तो फिर विजुअल फील्ड असेसमेंट और ओसीटी लेटर ऑन इन्वेस्टिगेशन बताएंगे बिफोर मेकिंग अ कंप्लीट डायग्नोसिस ऑफ इट.
डायग्नोसिस में अगर आपके पास एक पेशेंट आता है जिसको प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा है, तो सबसे पहले आपने हिस्ट्री लेनी है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन करनी है और इन्वेस्टिगेशन करनी है। इन्वेस्टिगेशन जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी, जब आपने डायग्नोसिस बना लिया, उसके बाद लेटर ऑन आप ट्रीटमेंट के ऊपर जाओगे। हिस्ट्री में क्या करना है, विजुअल एक्विटी में पेशेंट आपके पास हो सकता है एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट आपके पास आए, क्योंकि सिम्प्टोमेटिक पेशेंट और विजुअल फील्ड इफेक्ट्स के साथ मोस्टली उस वक्त आते हैं जब लेट ऑनसेट होता है प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा का। अर्ली ऑनसेट में मोस्टली पेशेंट्स एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। ऑप्थेल्मिक हिस्ट्री आपने पूछनी है। रिफ्रैक्टिव स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मायोपिया के अंदर ओपन एंगल होगा और हाइपरमेट्रोपिया के अंदर एंगल क्लोजर की रिस्क है। कॉजेज ऑफ सेकेंडरी ग्लूकोमा आपने पूछना है, कोई ऑक्यूलर ट्रॉमा तो नहीं है, कोई इन्फ्लेमेटरी कंडीशन तो नहीं थी, आंख में बहुत ज्यादा रेडनेस तो नहीं हुई थी, या कोई और इस तरह की ट्रॉमेटिक एसोसिएशन तो नहीं है। देन प्रीवियस आई सर्जरी, क्योंकि रिफ्रैक्टिव सर्जरी के साथ एसोसिएटेड इंट्राओक्युलर प्रेशर एलिवेट हो जाता है, उस इंट्राओक्युलर प्रेशर का हो सकता है वो उस टाइम पे एलिवेटेड हो, जनरली पेशेंट का एलिवेटेड इंट्राओक्युलर प्रेशर ना रहता हो। फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा की, ये पूछ लेना है। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री पूछनी है, क्यों? क्योंकि बहुत सी ड्रग्स ऐसी होती हैं जो कि हम देते हैं पेशेंट को फॉर ट्रीटमेंट ऑफ प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा, दैट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। That is contraindicated. For example, beta blocker is completely contraindicated in patients who are having asthma or who are having a heart failure, heart block, और तो उसमें हमने नहीं देनी बीटा ब्लॉकर। सो उनसे ये पूछनी है हिस्ट्री बिफोर गिविंग और प्रिस्क्राइबिंग और डायग्नोसिंग अ पेशेंट विद इट। हेड इंजरी का पूछना है, वेजोस्पास्टिक कंडीशंस का पूछना है, ये हमें कॉजेज को रूल आउट करने में हेल्प करेगा। डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर एब्नॉर्मलिटीज और ओरल फीमेल अगर है तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की आपने हिस्ट्री जरूर लेनी है। मेडिकेशन की हिस्ट्री लेनी है। स्टीरॉयड इंड्यूस होता है, इंट्राओक्युलर प्रेशर एलिवेट हो सकता है, तो एक पेशेंट ने अगर स्टीरॉयड लिए इवन इन द फॉर्म ऑफ टॉपिकल क्रीम्स या कोई इनहेलेंट्स उसने यूज किए हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी न किसी लेवल के ऊपर उसकी बायो अवेलेबिलिटी होती है और उसकी एब्जॉर्प्शन होती है सिस्टमिक लेवल पे। सोशल हिस्ट्री पूछनी है, स्मोकिंग और अल्कोहल की हिस्ट्री पूछनी है। स्पेसिफिकली जब हम सस्पेक्ट करें कि पेशेंट को जो न्यूरोपैथी है, वो जो जिसके ऊपर फाइंडिंग्स आएंगी लेटर ऑन, वो टॉक्सिक है या न्यूट्रिशनल ऑप्टिक न्यूरोपैथी अगर हम सस्पेक्ट करें। और एलर्जीज की हिस्ट्री पूछनी है कि उसको सल्फोनामाइड को कोई एलर्जी तो नहीं है, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम का पेशेंट तो नहीं रह चुका, या इस तरह की चीजें जरूर पूछनी है उसको, क्योंकि लेटर ऑन हमने एसीटाजोलमाइड या और जो ड्रग्स प्रिस्क्राइब करी हैं, हो सकता है उसको पहले ही ऑलरेडी एलर्जी हो टू दैट ड्रग्स। एग्जामिनेशन अगर आती है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, विजुअल एक्विटी पेशेंट की देखेंगे। एवरीथिंग दैट स्टार्ट्स इन आई इज द बेसिकली विजुअल एक्विटी। विजुअल एक्विटी की बेसिस पे हमने बहुत से डायग्नोसिस बनाते हैं और सस्पेक्ट करते हैं टुवर्ड्स दैट। विजुअल एक्विटी पूछेंगे, कलर विजन पूछेंगे। कलर विजन में पॉजिटिव होगा विद ऑप्टिक न्यूरोपैथी रादर देन ग्लूकोमा। आरएपीडी का देखना है। प्यूपल्स में स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन में हमने एक्सक्लूड करनी है, कोई भी सेकेंडरी कॉज तो नहीं है, कोई न्यूवेस्कुलराइजेशन तो नहीं हो रही आयरस के ऊपर, या कोई हमें सूडो एक्सफोलिएशन के सिम्टम्स तो नहीं मिल रहे, या कोई पिगमेंट्स तो नहीं है, पिगमेंट डिस्पर्शन सिंड्रोम, क्योंकि वो हमें प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा को रूल आउट करने में हेल्प करेगा। देन इट विल मूव टुवर्ड सेकेंडरी ओपन एंगल ग्लूकोमा, क्योंकि हमें कोई कॉज मिल जाएगी टिपिकल। उसके बाद ये हमने स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन कर ली, अभी हमने सिर्फ और सिर्फ इंटीरियर सेगमेंट तक की है, पीछे हम नहीं गए फंडस पे। अब हम देखेंगे टोनोमीट्री। टोनोमीट्री में हमारे पास अवेलेबिलिटी होती है सीटी की। सीटी से ज्यादा बेहतर होता है कि हम जो आइडियल टोनोमीट्री दैट इज एप्लीनेशन टोनोमीट्री वो हम करें। एप्लीनेशन टोनोमीट्री पे अगर कट ऑफ वैल्यू आपको उससे ज्यादा आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल 21 है, 25 तक आ रहा है, देन यू डोंट जंप टू द डायलेटिंग द पेशेंट्स एंड ऑल दैट थिंग। आपने क्या करना है, आपने पेकीमीट्री करनी है। पेकीमीट्री करनी है, सेंट्रल कॉर्नियल थिकनेस देखनी है। क्यों? क्योंकि ऐसा होता है कि सेंट्रल कॉर्नियल थिकनेस अगर ज्यादा हुआ है तो आपको फॉल्सली पॉजिटिव लेवल्स आ सकते हैं, और अगर सेंट्रल कॉर्नियल थिकनेस कम है तो आपको फॉल्सली लो वैल्यूज आ सकती हैं 80 के ऊपर। वो करेक्शन फैक्टर अप्लाई होगा। करेक्शन फैक्टर अप्लाई करने के बाद जो एक्चुअल एक्सप्लेनेशन टोनोमीट्री के जो हमें रिजल्ट्स मिल जाएंगे, उसके बाद हमने आइडियली गोनियो करनी चाहिए इन ऑर्डर टू सीक देयर ओपन एंगल्स इन ऑल 4 क्वाड्रेंट्स। उसके बाद एक तो गोनियो भी कर सकते हैं, दूसरा ये है कि अगर हमारे पास अवेलेबिलिटी नहीं है या टाइम नहीं है हमारे पास गोनियो करने का, तो वेन हेरिक से हम देख लें कि एंगल ओपन है या नहीं। उसके बाद पेशेंट को डायलेट करवाना है। कभी भी ऐसे नहीं करना कि पेशेंट आपके पास आया, आईओपी एलिवेटेड है, हमने उसकी चलो आपको पेकीमेट्री की, आपने देखा कि लो लेवल्स आ रहे हैं जो भी है, और आपने उसका वेन हेरिक किए बगैर आपने पेशेंट को डायलेट कर दिया। पेशेंट इस तरह के भी आए हैं जो कि एंगल क्लोजर के साथ आईओपी एलिवेटेड था, हमने डायलेट करवाया और वो एंगल क्लोजर एक्यूट एंगल क्लोजर की पिक्चर में चला गया। सो यू नीड टू सी कि व्हेन हेरिक के अकॉर्डिंगली ओपन एंगल है, देन पेशेंट को डायलेट करना है। उसके बाद नाउ व्हाट वी डू इज दैट हमने डायलेट किया, पेशेंट को ऑप्टिक डिस्क के ऊपर फाइंडिंग्स देखनी है। ऑप्टिक डिस्क के ऊपर मेजरली 3 चीजें देखनी होती हैं। हमने सबसे पहले ऑप्टिक डिस्क देखनी है, देन वी हैव टू सी द पेरीपेपिलरी एरिया एंड द रेटिनल नर्व फाइबर लेयर। ठीक है, अब सबसे पहले हम ऑप्टिक डिस्क के ऊपर देखेंगे कि क्या फाइंडिंग्स होती हैं। ऑप्टिक डिस्क में सबसे पहले ये समझने की चीज है कि ऑप्टिक डिस्क में होता क्या कुछ है।
सो फॉर जूनियर्स एंड ऑल्सो द सीनियर्स टू, यहाँ पे अगर हम ये देखें पूरी ऑप्टिक डिस्क है, दिस इज द एंटायर डिस्क। इस डिस्क के अंदर क्या कंपोनेंट होते हैं, ये जो व्हाइटिश सा एरिया आपको नजर आ रहा है, दिस इज द कप। इस कप के अराउंड जो सराउंडिंग पिंकिश सा ऑरेंज स्ट्रक्चर है, दैट इज द न्यूरोरेटिनल रिम। अब ये न्यूरोरेटिनल रिम और कप मिला के एक बनाती है डिस्क। हो क्या रहा है ग्लूकोमा में, इस न्यूरोरेटिनल रिम की थिनिंग हो रही है। जब इसकी थिनिंग हो रही है तो अल्टीमेटली आपकी कप का साइज इंक्रीज हो रहा है और अल्टीमेटली कप टू डिस्क रेशियो इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी इन ग्लूकोमा। सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन दिस केस। तो आपको न्यूरोरेटिनल रिम के बारे में बताया कि दैट इज ऑरेंज पिंक टिश्यू है और न्यूरोरेटिनल रिम की थिनिंग जो है वो कैरेक्टरिस्टिक है ग्लूकोमेटस ऑप्टिक डैमेज के अंदर। ऑप्टिक कप टू डिस्क रेशियो 2% के केसेस में ऑलरेडी 0.7 तक होती है, सो दैट इज आल्सो अ फिजियोलॉजिकल कंडीशन बट इन अ वेरी फ्यू सब्जेक्ट्स, दैट इज जस्ट 2%। इन एन इंडिविजुअल एसिमेट्री ऑफ 0.2 से ज्यादा की अगर एसिमेट्री आ रही है, फॉर एग्जांपल एक आई के अंदर 0.4 तक की है और दूसरे आई में आपको लग रहा है कि 0.6 है या 0.7 है, सो ये भी एक अलार्मिंग कंडीशन है और सस्पिशन क्रिएट कर सकता है आपके पास। ऑप्टिक डिस्क का साइज बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पहले भी मैंने एक बात बताई थी कि लार्ज ऑप्टिक डिस्क का साइज जो होता है दैट इज मोर ससेप्टेबल और दैट सस्टेन मोर डैमेज, particularly in normal tension glaucoma। डिस्क लार्ज होती है अफ्रीकन्स में मोस्टली, और नॉर्मल डिस्क का जो साइज कंसिडर होता है वो 1.5 to 1.7 मिलीमीटर्स कंसिडर होता है। हाउ डू यू मेजर द ऑप्टिक डिस्क साइज? व्हाट वी डू इज दैट कि हमने बेसिकली फोकस किया पहले ऑप्टिक डिस्क के ऊपर थ्रू द लेंस, और उसके बाद फिर हमने जो कैलिब्रेशन होती हैं ग्रेटिट्यूड जो कि स्लिट लैम्प के ऊपर अवेलेबल होता है उससे एक थिन स्लिट क्रिएट की, और थिन स्लिट से हमने फ्रॉम द फर्स्ट न्यूरोरेटिनल रिम, फॉर एग्जाम्पल available है। If you see here, this is for example the disc and this is basically the cup, ठीक है। तो अब जब आपने स्लिट मेजर बनाना है तो आपने स्लिट इस तरह से बनाना है, ये तो इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं किया ताकि आपको समझ आ रहा है कि ये फ्रॉम द सुपीरियर न्यूरोरेटिनल रिम और इंफीरियर न्यूरोरेटिनल रिम, ये डिस्टेंस होगा ये आपके पास वर्टिकल डिस्क डायमीटर होगा, और जो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो आपके पास हॉरिजॉन्टल डिस्क डायमीटर होगा इन मिलीमीटर्स। कैलिब्रेशंस होती हैं ग्रेटिट्यूड के ऊपर, बिल्कुल इसी तरह से जैसे हम कॉर्निया की मेजरमेंट्स करते हैं यूजिंग अ स्लिट लैम्प। करेक्शन फैक्टर अप्लाई होता है यूजिंग पर्टिकुलर लेंस। अगर आप 60 60D यूज कर रहे हो तो यू हैव टू करेक्शन फैक्टर में आपने इनटू 0.88%, नाइकन 60D में आपने अराउंड 1 होता है, वोक 90 में इनटू 1.3 होता है। इस तरह से ये डिफरेंट करेक्शन फैक्टर है, ये टेबुलेटेड फॉर्म में आपके पास अवेलेबल है इन कैंस की। चेंजेस इन ग्लूकोमा मैंने आपको बताया 3 लेवल्स के ऊपर देखना है। ऑप्टिक डिस्क को देखना है, ऑप्टिक नर्व हेड को, दैट इज ऑप्टिक डिस्क, पेरिपेपिलरी रीजन को, और रेटिनल नर्व फाइबर लेयर। अब ग्रेजुअली हम हर एक को देखना शुरू करेंगे। ग्लूकोमेटस ऑप्टिक नर्व हेड में मैंने आपको बताया कि इनिशियली कपिंग होती है, वो कपिंग का मैंने बता दिया कि क्यों होती है। कि इनिशियली अगर हम ये देखें, दिस इज अ हेल्दी कप एंड दिस इज द इंटायर हेल्दी डिस्क, न्यूरोरेटिनल रिम है। आहिस्ता आहिस्ता न्यूरोरेटिनल रिम जो है वो थिन होना शुरू हो जाएगा, तो अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन इज दैट कि वो कप का साइज इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। आई विद अ स्मॉल डिस्क, समटाइम्स कुछ पेशेंट्स के अंदर वैसे ही स्मॉल डिस्क का साइज होता है, और अल्टीमेटली जब वो उनका ग्लूकोमेटस डैमेजेस बहुत ज्यादा हो चुके हैं तो होते हैं, उसके बावजूद भी हमें ये लग रहा होता है कि यार डिस्क तो बहुत छोटी है। उस केस में ये नहीं करना कि हमने सिर्फ डिस्क का साइज देखना है या कप टू डिस्क रेशियो देखना है, और भी मल्टीपल फाइंडिंग्स होती हैं ग्लूकोमा की जो कि डिस्क के ऊपर प्रेजेंट होती हैं, वो भी देखनी है। लेटर ऑन बताती हूँ भी आपको कि कौन कौन सी फाइंडिंग्स होती हैं। ग्लूकोमेटस डैमेज 4 तरह की हो सकती है डिस्क के लेवल के ऊपर। ईदर इट्स अ फोकल इस्कीमिक, either it's a myopic glocomatous disc, either it's a sclerotic disc, or either it's a concentrically enlarging disc। So basically सबसे पहले देखें अगर फोकल इस्कीमिक डिस्क क्या होती है। फोकल इस्कीमिक डिस्क वो डिस्क होती है जिसमें एक पर्टिकुलर स्मॉल एरिया ऑफ न्यूरोरेटिनल रिम की थिनिंग हो रही है। मतलब क्या हो रहा है कि अगर इफ दिस इज द डिस्क, तो इस एरिया से अगर न्यूरोरेटिनल रिम की थिनिंग होनी शुरू हो गई है तो इस पॉइंट के ऊपर इस्कीमिया नहीं सॉरी, इस पॉइंट के ऊपर न्यूरोरेटिनल रिम की थिनिंग है तो इस पॉइंट के ऊपर कपिंग ज्यादा होनी शुरू हो जाएगी, तो एक नॉच क्रिएट हो जाएगा। इस नॉच को जहां पे हमें नॉच नजर आएगा वो मोस्टली सुपीरियर या इंफीरियर होता है, ये मैंने नेजल बना दिया। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें तो दिस इंफीरियर एस्पेक्ट के ऊपर आपको एक नॉच नजर आ रहा है। और अगर हम इस पिक्चर में देखें, अगर हमारा रेड प्री फिल्टर में देखें तो यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर हमें एक नॉच नजर आ रहा है। ये नॉच क्यों हो रहा है? क्योंकि फोकल एरिया पे न्यूरोरेटिनल रिम की थिनिंग हो रही है, उसकी वजह से उस पॉइंट के ऊपर एक, जैसे कहते हैं उर्दू के अल्फाज में, एक चोंच छोटी सी बनना शुरू हो जाएगी, एक नॉचिंग क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी। तो दैट इज बेसिकली अ फोकल इस्कीमिक डिस्क। फिर मायोपिक डिस्क होती है, बहुत से पेशेंट्स मायोपिक होते हैं। अब उनमें ग्लूकोमा अगर है फॉर इंस्टेंस, हाउ विल यू डिफरेंशिएट विद इट?
तो उसमें क्या होता है कि यू विल सी अ टिल्टेड डिस्क, शैलो डिस्क होगी, टेम्पोरल क्रेसेंट ऑफ पेरिपेपलरी एट्रोफी टुगेदर विद द फीचर्स ऑफ ग्लोकोमा। नॉचिंग आपको नजर आ सकती है, हो सकता है आपको बायोनेटिंग नजर आए, लेटर ऑन बताते हैं कि बायोनेटिंग वगैरह क्या होती है, मोर कॉमनली इन यंगर पेशेंट्स। देन अ स्क्लेरोटिक डिस्क, स्क्लेरोटिक डिस्क क्या होती है? इट्स अ सॉसर शेप्ड डिस्क। सॉसर शेप्ड डिस्क मतलब ये कि सॉसर शेप्ड अपीयरेंस है और जो न्यूरोरेटिनल रिम है वो स्लोपिंग की तरह जा रही है विद इन द डिस्क, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आप इसको देखो तो ये यू आर नॉट कंप्लीटली एबल टू डिफरेंशिएट कि न्यूरोरेटिनल रिम किधर है और किधर डिस्क है, क्योंकि न्यूरोरेटिनल रिम एक स्लोपिंग पैटर्न के अंदर डिस्क के साथ एसोसिएटेड है। वेरिएबल पेरिपेपलरी एट्रोफी एंड पेरिफेरल विजुअल फील्ड इफेक्ट, पेशेंट्स आर मोस्टली जो स्क्लेरोटिक डिस्क के पेशेंट्स होते हैं वो ओल्डर होते हैं और साथ में एसोसिएटेड उनकी कोई वैस्कुलर पैथोलॉजी भी हो सकती है। कंसेंट्रिकली इनलार्जिंग डिस्क, ये एक टिपिकल केस है जिसमें न्यूरोरेटिनल रिम की जनरलाइज सर्कुलर मैनर में थिनिंग हो रही है और जनरलाइज कंसेंट्रिकली इनलार्जमेंट हो रही है डिस्क की। देन ये एक पिक्चर है दैट विल हेल्प यू डिफरेंशिएट डिफरेंट इन बिटवीन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लोकोमेटस डिस्क। ये देखिए तो मायोपिक ग्लोकोमेटस डिस्क है, क्यों? क्योंकि मायोपिक आपको यहाँ पे टेम्पोरल क्रेसेंट नजर आ रहा है, टिल्टेड डिस्क है, मायोपिक फीचर्स हैं, साथ में ग्लोकोमा के भी फीचर्स हैं। ग्लोकोमा के क्या फीचर्स हैं इस पॉइंट के ऊपर अगर देखें तो बायोनेटिंग नजर आ रही है, फिर जनरलाइज इनलार्जमेंट ऑफ कप हो रहा है जिसमें कंसेंट्रिकली कोई आप एक पॉइंट नहीं बता सकते कि एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर न्यूरोरेटिनल रिम की थिनिंग हो रही है, जनरलाइज न्यूरोरेटिनल रिम की थिनिंग हो रही है और अल्टीमेटली कपिंग इंक्रीज हो रही है जनरली। और इस पॉइंट के ऊपर फोकल ग्लूकोमेटस डिस्क है, क्योंकि अगर आप ये देखो तो इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे थिनिंग ज्यादा है इन कंपैरिजन टू यहाँ पे थिनिंग, ठीक है। देन नॉन स्पेसिफिक साइंस भी होते हैं ग्लूकोमेटस डैमेज के, डिस्क हैमरेजेस हो सकते हैं, बेयरिंग ऑफ सर्कमलीनियर ब्लड वेसल्स, बायोनेटिंग कोलैटरल्स, लॉस ऑफ नेजल न्यूरोरेटिनल रिम, लेमेलर डॉट साइन जो कि एक इंपॉर्टेंट साइन है, आगे बताते हैं क्या होता है। डिस्क हैमरेजेस मोस्टली होते हैं इंफ्रोटेम्पोरली हो सकते हैं। यहाँ पे ये डिस्क हैमरेज प्रेजेंट है जो कि एक छोटा सा फ्लेम शिप हैमरेज प्रेजेंट है, यहाँ पे भी एक फ्लेम शिप हैमरेज है। दैट इज अ नॉन ग्लूकोमेटस साइन, मतलब ये टिपिकली और भी कंडीशन में प्रेजेंट हो सकता है, सीआरवीओ के पेशेंट्स में, बीआरवीओ के पेशेंट्स में भी इसके साथ एसोसिएटेड क्लोज टू द डिस्क हैमरेज हो सकता है। आपने ये नहीं सोचना कि क्लोज टू द डिस्क अगर हैमरेज है तो ये ग्लूकोमा का पेशेंट हो गया, आपने यू हैव टू रूल आउट कि और कोई पैथोलॉजी तो नहीं चल रही। देन वी हैव बेयरिंग ऑफ सर्कमलीनियर ब्लड वेसल्स। अब इसमें क्या होता है, व्हाट हैपेंस इज दैट कि अ साइन ऑफ अर्ली थिनिंग ऑफ न्यूरोरेटिनल रिम होता है, इट इज बीइंग कैरेक्टराइज्ड बाय अ स्पेस बिटवीन द न्यूरोरेटिनल रिम and the superficial blood vessels. If this is a superficial blood vessel, you can see कि इस superficial blood vessel और ये न्यूरोरेटिनल रिम के दरमियान में एक whitish सी स्पेस प्रेजेंट है, तो इसको हम कहते हैं बेयरिंग ऑफ सर्कमलीनियर ब्लड वेसल्स, ठीक है। ये एक साइन है अर्ली थिनिंग ऑफ न्यूरोरेटिनल रिम, मतलब इस एरिया से अगर न्यूरोरेटिनल रिम की थिनिंग होनी शुरू हो गई तो उसकी क्लोज सुपरफिशियल जो ब्लड वेसल पास करिए उसके दरमियान में एक बेयरिंग होनी शुरू हो गई है। बायोनेटिंग साइन क्या होता है? बायोनेटिंग साइन को बता सकते हैं बायोनेटिंग साइन क्या होता है? जी जी, शार्प बेंड ऑफ द वेसल्स, ठीक है। बेसिकली ये डबल एंगुलेशन होती है। इफ यू कंपेयर कि ये हमारी एक है कप, ठीक है, और ये कोई वेजल आ रही है, वेजल आ रही है जब न्यूरोरेटिनल रिम की थिनिंग होती है तो जैसे ही वेजल आती है वो शार्प एंगुलेशन क्रिएट करती है, डीप डाउन जाती है और बैकवर्ड जाती है, ठीक है, बिफोर इट मूव्स ऑन टू द डिस्क इन अ स्ट्रेट कोर्स। तो उसकी डबल एंगुलेशन जनरेट हो रही है, पहले वो जाती है, यूं जा रही है, नीचे डिप करके बैकवर्ड जाती है और उसके बाद फिर यूं कोर्स क्रिएट होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो इस लेवल के ऊपर इस वेजल की, ये वेजल स्ट्रेट जा रही है, उसके बाद यहाँ पे उसने डिप किया बिफोर इट कंटिन्यूज इट्स कोर्स, तो ये एक बायोनेटिंग साइन होता है जो कि टिपिकल है, वन ऑफ द टिपिकल साइंस ऑफ ग्लूकोमेटस डिस्क डैमेज। कोलैटरल्स डेवलप होना शुरू हो जाती हैं, इट कैन आल्सो डेवलप इन द पेशेंट्स विद सीआरवीओ, सो रिलेटिवली ये और इज बीइंग कॉज्ड बाय द लो ग्रेड सर्कुलेटरी ऑब्स्ट्रक्शन, रेटिनल वेस्कुलर टॉर्सोसिटी भी इसके साथ एसोसिएटेड होती है। लॉस ऑफ नेजल न्यूरोरेटिनल रिम, अगर इसमें देखें तो नेजल एरिया पे न्यूरोरेटिनल रिम की थिनिंग है इन कंपैरिजन टू द टेम्पोरल एरिया, यहाँ पे बिल्कुल ना होने के बराबर है न्यूरोरेटिनल रिम, सो इट इज आल्सो फाइंडिंग ऑफ ग्लूकोमेटस डैमेज एंड इट इज क्वाइट नॉन स्पेसिफिक फाइंडिंग ऑफ इट, लेकिन ये भी पढ़नी जरूरी है। लेमेलर डॉट साइन क्या होता है? लेमेलर डॉट साइन बेसिकली ये होता है जिसमें अगर हम देखें, मैंने आपको ये बात बताई कि न्यूरोरेटिनल जो रेटिनल नर्व फाइबर्स हैं, दे आर बीइंग पासिंग और एग्जिटिंग द आई थ्रू अ पॉइंट कॉल्ड द लेमिना क्रेब्रोसा, जहां जो कि एक सीव लाइक स्ट्रक्चर है। इफ दिस इज कंसिडर्ड द लेमिना क्रेब्रोसा, यहां से नर्व फाइबर्स पास कर रहे हैं, ठीक है। जब इन नर्व फाइबर्स की थिनिंग होनी शुरू हो जाएगी तो इसके दरमियान में जो सीव लाइक स्ट्रक्चर के जो होल्स हैं वो एनलार्ज होना शुरू हो जाएंगे। तो जब वो एनलार्ज होंगे तो डिस्क के ऊपर आपको ग्रेइश डॉट्स नजर आएंगे। So gray dot-like fenestrations in the lamina fibrosa become more exposed as the neuroretinal rim recedes.
तो ये अगर ये वाली पिक्चर देखें, ये इतनी अच्छी नहीं है, ये वाली ज्यादा अच्छी है, जिसमें आपको ये ग्रे डॉट्स नजर आ रहे हैं डिस्क के ऊपर। क्यों? क्योंकि ये लेमिना कैब्रोसा की प्रोमिनेंस की वजह से नजर आ रहे हैं और वहां पे न्यूरेटिनल रिम थिन हो चुकी हुई है। पेरीपेप्लरी चेंजेस के ऊपर अगर आए तो पेरीपेप्लरी एरिया कोई बता सकता है होता क्या है? व्हाट इज द पेरीपेप्लरी एरिया? सराउंडिंग ऑप्टिक नर्व, द एरिया सराउंडिंग जस्ट आउटसाइड द डिस्क, जो एरिया होता है उसको हम पेरीपेप्लरी एरिया कहते हैं। पेरीपेप्लरी एरिया के अंदर भी चेंजेस होती हैं। इसमें 4 जोन्स होती हैं, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। हमारे लिए मोर इंपॉर्टेंट है अल्फा और बीटा जोन, वो क्या होती हैं और उसके अंदर क्या फाइंडिंग्स होती हैं, इंपॉर्टेंट है। डिस्क के सबसे पास क्लोजेस्ट टू द डिस्क जोन होती है जिसको हम कहते हैं बीटा जोन। कैसे याद रहेगा? BD चौरासिया से याद कर लो, ठीक है, BD दैट इज कि बीटा जोन जो है क्लोजेस्ट टू द डिस्क है, ठीक है। अच्छा, अब बीटा जोन क्यों होती है? और बीटा जोन जो है इट इज बेसिकली उसके अंदर एट्रोफी होना शुरू हो जाती है, कोरियो रेटिनल थिनिंग होती है बीटा जोन के अंदर, रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम के लॉस होता है वहां पे और उस बीटा जोन की एट्रोफी होना शुरू हो जाती है। अब दिस इज द जोन, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये डिस्क है हमारी और डिस्क के बिल्कुल क्लोजेस्ट जो आपको ग्रेइश सा ब्लैकिश ग्रेइश सा एरिया नजर आ रहा है, ये बीटा जोन है। बीटा जोन से बियॉन्ड जो जोन है वो आपके पास अल्फा जोन होती है। बीटा जोन के अंदर कोरियो रेटिनल थिनिंग होती है और जो अल्फा जोन है इट इज बियॉन्ड द बीटा जोन, और इस जोन के अंदर जो अल्फा जोन है, इफ दिस इज द बीटा जोन, ये वाले जो जोन है यहाँ पे हाइपो या हाइपर पिगमेंटेशन होती है रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम की। क्यों इंपॉर्टेंट है ये अल्फा और बीटा जोन? क्योंकि बीटा जोन के अंदर कंप्लीट रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियल सेल्स और फोटोरिसेप्टर्स का लॉस हो रहा है, तो अगर वहां पे डैमेज हो रहा है तो उस लेवल के ऊपर एब्सोल्यूट स्कोटोमास डेवलप होंगे। और जो आपके पास अल्फा जोन होती है उसके अंदर क्या हो रहा है कि रिलेटिवली किसी लेवल के ऊपर आपके पास आरपी और फोटोरिसेप्टर्स प्रेजेंट है, तो वहां पे जो स्कोटोमास डेवलप होंगे दैट विल बी रिलेटिव स्कोटोमास। जोन्स इन मायोपिक सब्जेक्ट्स में वेरी डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट कि ये जोन्स कौन से चल रहे हैं, कौन सी बीटा जोन है, कौन सी अल्फा जोन है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वहां पे टेम्पोरल क्रिस्टल्स प्रेजेंट है, ऑलरेडी डिल्टेड डिस्क है, सो यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट इन अंडरस्टैंडिंग कि कौन सी जोन्स चल रही हैं इन मायोपिक पेशेंट्स। Okay. The last thing that we need to see before moving towards the investigations in a clinical examination of the patient, that is retinal nerve fiber layer. Retinal nerve fiber layer क्या होती है? Basically हमारे जो retinal ganglion cells हैं वो axons जो हैं, हमारे पास 1.2 मिलियन axons present होते हैं, ganglion cells axons present होते हैं। So basically वो एक पूरी interpretation generate करते हैं और retina के ऊपर पूरे स्ट्रक्चर जो हैं वो बिफोर इट एग्जिट्स द आई वो एक पूरा एक पैटर्न जनरेट करते होते हैं। हिलाल भाई, ये अभी हमने ये बेसिकली चीज देखी है कि जो रेटिनल नर्व फाइबर्स हैं उनकी किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होती है इन द रेटिना, और फिर रेटिना के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होती है और उसके बाद विद इन द ऑप्टिक डिस्क डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होती है, ये चीज देखनी है क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है रेटिनल नर्व फाइबर लेयर की थिनिंग के अंदर। जब आपके पास ग्लूकोमा होता है पेशेंट को और ग्लूकोमेटस डैमेज जनरेट होता है तो क्या होता है कि मोस्ट अर्लीस्ट जो फाइबर्स डैमेज होते हैं वो कौन से फाइबर्स होते हैं? आर्क्यूएट फाइबर्स होते हैं। ये वाले फाइबर्स सबसे पहले डैमेज होंगे, इसलिए जो विजुअल फील्ड डिफेक्ट जनरेट होंगे ग्लूकोमा में अर्ली ऑन, वो आर्क्यूएट फाइबर्स का डैमेज सबसे पहले होगा। और बहुत लेट ऑन रेजिस्टेंस जब डेवलप होता है तो फिर ये पेपिलोमैक्युलर बंडल के फाइबर्स डैमेज होते हैं क्योंकि दे आर क्वाइट रेजिस्टेंट टू इट। ये एग्जैक्टली यही बात मैंने आपको सारी इसके ऊपर एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद ये RNFL की अरेंजमेंट है, यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि ये नेजल डिस्क है, डिस्क के नेजली जो फाइबर्स हैं वो स्ट्रेट हैं, डिस्क के पेपिलोमैक्युलर बंडल के जो फाइबर्स हैं वो भी स्ट्रेट है। ये जो ग्रीन लाइन में आपको शो हो रहे हैं ये वो फाइबर्स हैं जो आर्क्यूएट शेप फाइबर्स हैं, ठीक है। और उसके बाद ये बाकी एरियाज के फाइबर्स हैं। विद इन द ऑप्टिक डिस्क इनकी अरेंजमेंट इस तरह से होती है कि जो फाइबर्स पेरिफेरी ऑफ द फंडस से आ रहे होते हैं वो मोस्ट पेरिफेरल प्रेजेंट होते हैं। एक मिनट, अच्छा, ये वाले फाइबर्स जो हैं, ये जो ब्लू में शो हो रहे हैं, ये फाइबर्स जो हैं वो टुवर्ड्स द पेरिफेरी प्रेजेंट हैं क्योंकि ये पेरिफेरल पार्ट ऑफ द फंडस से आ रहे हैं और मोस्ट पेरिफेरल पोर्शन में प्रेजेंट होते हैं। और जो फाइबर्स आपके नियर टू द ऑप्टिक नर्व होते हैं वो फाइबर्स जो होते हैं वो मोर क्लोज टू द सेंटर होते हैं। मतलब अगर एक डिस्क है, जो पेरिफेरी से आने वाले फाइबर्स हैं वो क्लोज टू द पेरिफेरी प्रेजेंट होंगे और जो सेंटर क्लोज टू द डिस्क वाले फाइबर्स होंगे वो सेंटर के अंदर जा रहे होंगे, डिस्क विद इन द डिस्क, क्योंकि अल्टीमेटली उन्होंने एंड होना है डिस्क के अंदर और डिप करना है।
ये पेपिलो आरएनएफएल की थिनिंग दो तरह की आरएनएफएल की थिनिंग होती है, ईदर वेज शेप थिनिंग होती है या डिफ्यूज थिनिंग होती है, ठीक है। ये वाली जो थिनिंग है ये टिपिकल वेज शेप थिनिंग है, जिसमें आपको ये नजर आ रहा है कि ये एक वेज शेप स्ट्रक्चर है और इस एरिया में आरएनएफएल की थिनिंग नजर आ रही है। ये ज्यादा अच्छी उस वक्त नजर आती है जब हम रेड फ्री फिल्टर ग्रीन फिल्टर में हम देखते हैं, तो ये आरएनएफएल की थिनिंग हमें ज्यादा क्लिनिकल एग्जामिनेशन के ऊपर पता चलती है। और दिस इज अ डिफ्यूज थिनिंग, यहाँ पे आपको पता नहीं चल पा रहा प्रॉपर्ली और कोई मार्जिन वेल सर्कमस्क्राइब नहीं है कि कहाँ पे आरएनएफएल थिन है और कहाँ पे आरएनएफएल थिक है और कहाँ पे नॉर्मल है। सो बेसिकली यहाँ पे दिस इज द डिफ्यूज थिनिंग, बेटर सीन इन रेड फ्री फिल्टर। और उसके बाद अल्टीमेटली आपको पता चलेगा आरएनएफएल की थिनिंग का इन द ओसीटी और स्कैनिंग लेजर पोलारीमेट्री। इसके अलावा आरएनएफएल की थिनिंग जो डिफेक्ट है ये नॉट नेसेसरीली जो है वो पेशेंट्स विद ग्लोकोमा प्रेजेंट होता है। ऑल द पेशेंट्स विद पिट्यूटरी एडिनोमा, ऑप्टिक न्यूराइटिस और एक्यूट ऑप्टिक न्यूरोपैथी, इनके अंदर भी आरएनएफएल की थिनिंग प्रेजेंट हो सकती है। So in this topic we have basically discussed the history, examination, risk factors और वो सारी चीजें हमने डिस्कस की हैं। अब एक पेशेंट जिसकी हमने एग्जामिनेशन कर ली, अब उसको हमने इन्वेस्टिगेट करना है और उसको ट्रीट करना है। तो इन फॉर द ट्रीटमेंट एंड इन्वेस्टिगेशन विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह। थैंक यू। Well done, excellent presentation, very elaborate. See, when you start a subject, you first introduce the title. What do you mean by the words which are included in the title? So, what is the definition of glaucoma? Neuropathy characterized by morphological changes in the optic nerve present between nerve fibers. Optic neuropathy due to Increase of the pressure. increase. This is the definition in the adults. And what is the definition in children? The raised of pressure that causes damage to the entire globe. Okay, so in adults, it is only the optic nerve head which is involved, while in children, it is the whole eyeball which is involved, resulting in ophthalmos. So, first, always give definition of what you are going to discuss. Then, second thing is that IOP, intraocular pressure, is the most important controllable factor. So there is one word what are diurnal variations? So difference in between morning and evening. Okay, so how we detect diurnal variations? This is called phasing. Phasing, and in phasing we check intraocular pressure at different intervals. मेरे पास पेशेंट आता है, मैं उससे कहता हूँ अभी शाम को मेरे क्लिनिक में आया, मैंने 8 बजे आपका देख लिया, लेकिन सुबह 8 बजे कितना प्रेशर होता है और दोपहर को 12-1 बजे कितना होता है, क्या पता ज़्यादा होता हो और डैमेज हो रहा हो। सो आप कहीं से भी प्रेशर चेक कराएं, बट आई वांट एटलीस्ट 3 or 4 रीडिंग्स at different time intervals, so that I am sure that the intraocular pressure remains within the control limits. So this is one. Regarding genetic diseases, you see glaucoma, we have two types of diseases. One are genetic diseases. There is information passed in the genes in the families, and the other is environmental diseases. So the third category is multifactorial. Genetic plus environmental is equal to. So these are the three types of diseases we have. In the genetic diseases now, the advancements are in the detection of the genes. What are the genes which are being involved in the pathogenesis of glaucoma, cataract, and retinal dystrophies? And now the genetic manipulations and genetic, you can call it editing, chromosomal editing, DNA editing. The latest technique is called CRISPR-Cas9, in which you can cut the DNA, you can remove the particular gene, and you can introduce a new gene. So all these organisms which have their genetic material modified are called transgenic organisms. So in about 80s, it started with manipulation of the genome of bacteria, and then it came to mice and then cattle. See, yesterday the person
who sort of arranged the birth of Dolly passed away. और डॉली कौन थी? क्लोन की. So first sheep which was cloned and not born naturally was genetic manipulations. See, now we are, so this is a separate topic, how we are addressing the genetic defect mutations by genetic editing. Okay, so coming to the glaucoma, the important features are intraocular pressure. So we have to, there is no cutoff value. You see, above this is abnormal and below this is abnormal. The intraocular pressure of a population is a bell-shaped phenomenon. And the more the intraocular pressure is, the more chances that the damage will occur. But in some persons, the damage occurs early when the intraocular pressure is less, and this is called normal tension. And in some patients, the damage do not occur even when the pressure is raised. So this is called ocular hypertension. So there are multiple factors in addition to intraocular pressure, like how resistant are the neurons, neuronal fibers to the damage. Maybe they have more blood supply, so they are resistant. Those who are susceptible may be having less blood supply, so they are damaged early. Central corneal thickness वो Central corneal thickness gives you a measurement whether the intraocular pressure recording is reliable or not, whether actually it is more or actually it is less. But I am talking that in addition to intraocular pressure, there are factors which can decide whether the damage will occur or not. So we are interested in sort of picking the patients which are susceptible to damage. The earliest sign are the nerve fiber layer defects. So if you see the retina with red free or green light, you can see a slit like loss of striations. So ये एक अपनी हैबिट बनाएं कि ग्लाकोमा के पेशेंट्स में आप. The second thing, optic nerve, actually we lay stress on the cup, size of the cup, but more important is how much is the neuroretinal rim healthy. If the disc is large and neuroretinal rim is thin, but it is accommodating all the 1.2 million neurons, then it is not a pathological disc. When there is loss of neuroretinal rim, that matters. And in all the cases where you suspect notch or you suspect thinning of the neuroretinal rim, you always tally it with the visual fields. So whenever there is some anatomical defect, there should be a physiological defect also. If the anatomical and physiological defect do not correlate, it means they are not reliable. आपको अगर ऊपर नॉचिंग मिल रही है और नीचे व्यूअल फील्ड आर्कोइड स्कोटोमा आ रहा है, तो ये अंडरस्टैंडेबल है कि भाई इधर डैमेज हो रहा है तो नीचे व्यूअल फील्ड है. लेकिन अगर ऊपर नॉचिंग है और ऊपर ही व्यूअल फील्ड इफेक्ट आ रहा है तो ये अनरिलेटेड है, दे आर नॉट टू बी टेकन सीरियसली. So the most important thing is, I think, OCT, which we will be discussing next time. Any question, comments? सर एक इन्होंने पॉइंट रेज किया कि जो लोग में एस्थमाटिक या कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम है उन्होंने बीटा ब्लॉकर्स की जैसे तो टॉपिकल बीटा ब्लॉकर्स या जो टॉपिकल इंहेलर रेस्पिरेटर का कितना भी इफेक्ट है. Okay, whenever you put a drop of beta blocker in the eye, what happens? How much of it is absorbed in the eye? 20-30%. How much of it gets out of the eye? जो ही आप ब्लिंक करते हैं आधा बार आ जाता है. So 20-30%, and 30% is absorbed through the nasolacrimal duct into the systemic circulation. ये गले में आप
मरीज से पूछें आपको कतरा डालते हैं गले में महसूस होता है, वो कहता है हाँ जी महसूस होता है. सो द नेजल म्यूकोजा और द नेजोफरेंजियल म्यूकोजा इज वेरी वेस्कुलाइज्ड एंड इट गेट्स एब्जॉर्प्शन. सो मैंने कई पेशेंट को देखा है जिनको बीटा ब्लॉकर के बाद हार्ट अटैक हुआ. अब इस वजह से हुआ या वैसे हुआ कहना मुश्किल है. सो द सेफ स्ट्रेटजी इज टू हैव नेजोलैक्रिमल ऑक्लूजन. Ask the patient to press on the nasolacrimal sac for 2 minutes. After 2 minutes or maximum 3 minutes, the drop is out. Either it is absorbed or it comes out of the eye. After 3 minutes, there is no drop in the eye. Right. So, in all the patients who have a history of asthma or low pulse rate, then you can advise the nasolacrimal occlusion to decrease the systemic absorption. सेकंड सोशल का पार्ट के जो लोग एस्थमेटिक्स हैं जैसा हमने क्लीन मेंशन किया है, बहुत सारे डर्मा कंडीशन की वजह से का क्लीन यूज कर रहे हैं, उनको हमें कितना अपने स्क्रीनिंग में रखना चाहिए कि इनका आईपी ये हो सकता है. The first पहली चीज तो होती है you tend to avoid steroids so that ये नौबत ही ना आए कि वो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर ज़्यादा हो. ठीक है. There are steroid sparing drugs which you can particularly use for these patients who are prone to develop normal lens है तो कैटरैक्ट आप नहीं चाहते हो, तो इसीलिए हम स्टीरॉइड चेंज करके दूसरे इम्यूनोसप्रेसिव लाते हैं ताकि स्टीरॉइड्स के साइड इफेक्ट ना आए. पहली बात तो आई ना. सो देर इज नो सेफ डोज ऑफ स्टीरॉइड्स. जब भी आप स्टीरॉइड देते हैं, चाहे टॉपिकल दें, चाहे सिस्टेमिक दें, चाहे इनहेलर दें, देर इज अ लाइकलीहुड दैट द साइड इफेक्ट विल अकर. ठीक है. सो आप मिनिमम रखते हैं ताकि मिनिमम चांसेस हों, लेकिन कोई सेफ डोज नहीं है. पहली चीज तो ये होगी. दूसरा आप क्या पूछना क्या चाह रहे थे? तो हमें ऐसे लोगों को लॉन्ग टर्म एस्थमेटिक स्किन कंडीशन की वजह से यूज करें, हमें स्क्रीनिंग में लाना चाहिए कि आईयूपी है वो उनको एडवाइस करना चाहिए. हाँ. स्टेरॉइड रिस्पॉन्ड होगा डेफिनेटली. मतलब है जब स्टीरॉइड्स are likely to increase the intraocular pressure, so you should follow them up to rule out glaucoma. 6 हफ्ते 8 हफ्ते में आपको पता चल जाता है स्टीरॉइड रिस्पॉन्डर है कि नहीं है. सो आप ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो आप 2 हफ्ते बाद, 4 हफ्ते बाद, 6 हफ्ते बाद देख लेते हैं प्रेशर. अगर प्रेशर नहीं रेज हो फिर चांसेस कम है, लेकिन प्रेशर रेज हो जाए तो फिर लेकिन all those who are on steroids should have their intraocular pressure measured. ठीक है. इसीलिए हम स्टीरॉइड जो पेशेंट्स जिनमें कैटरैक्ट नहीं है उनमें भी अवॉइड करते हैं. CRVO हो गया, मैकुलर एडिमा हो गया. अब स्टीरॉइड देना है कि एंटीवेजेस देना है, तो अगर नॉर्मल लेंस है तो हम एंटीवेजेस देंगे. हाँ, किसी का लेंस रिमूव हुआ है तो उसमें हम स्टीरॉइड भी सोच सकते हैं कि भाई कैटरैक्ट तो अब आउट हो गया वो. ओके जी, थैंक यू वेरी मच. हाँ.